So here is Dr. Tokir Amjad, a registered pharmacist in New York. So Tokir, can you please introduce yourself to our audience? Assalamu alaikum. My name is Tokir, and I'm a registered pharmacist here in the state of New York, and I'm working as a supervising pharmacist in one of the community pharmacies. And thanks to Farhan Bhai, who brought to this platform to just give out the information whatever he's intending to. And thank you for your time, for taking a time to just watch this video. Can you tell us from where you graduated from Pakistan and what was the desires and dreams there? Sure. So I graduated from Bahaduddin Zakriya University, Multan, Form D session 2010 to 2015. And I was basically a CSS aspirant, but just it turned out to be in America, just going through that all registration process. So this is here I am. What was the inspiration and motivation for being a registered pharmacist in USA? So basically, जब हम पाकिस्तान से graduate करते हैं, or when we graduate from Pakistan, any of the universities as a Form D graduate, तो आपके पास ज़्यादा रास्ते नहीं होते. You don't have a lot of, I'll say, lot of versions of success in front of you. आप समझते हैं कि शायद probably the purpose of doing a degree is probably doing a marketing after, or just going to some sort of production industry or somewhere. लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि there is like thousands, or the ocean of opportunities that is lying ahead, जिसमें हम जा सकते हैं. So I believe becoming a registered pharmacist is one of the very lucrative future for a pharmacist. जितने भी पाकिस्तान में या internationally, any of the pharmacists who are struggling in their countries because of the lack of future. So United States is, I believe, one of the best countries in the world, and it's very lucrative here to become a pharmacist and working as a pharmacist. So Tokir bhai, what was the initial steps for arriving in USA and working in USA and the initial livings in USA? Well, I basically, whenever you apply as a registered pharmacist in another country to United States, तो आपको एक visa category issue होती है, that's called B1, B2. That means that's a visitor's visa. मतलब you cannot just come and thinking to settle down here. So these are the next steps. पर जब आप पाकिस्तान से या कहीं भी इंटरनेशनली आते हैं तो आप यहाँ पे एज ए विजिटर आते हैं. you get registered for एग्जाम देने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं आप. फर्स्ट एग्जाम जिसे आप FPGEE कहते हैं, फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी एग्जाम, तो उसके लिए आप रजिस्टर करवाते हैं खुद को, एंड देन यू कम हियर थ्रू प्रॉपर चैनल. तो दिस इज वेयर आई एम, एंड आई एम राइट नाउ इन न्यूयॉर्क सिटी. तो न्यूयॉर्क सिटी जो है, जब कोई भी नया बंदा आता है, तो इफ दे आर इन न्यूयॉर्क, तो दे गेट अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, access to everything, access to jobs, I mean a lot of stuff. So New York is pretty expensive, लेकिन यहाँ earnings भी वैसे ही हैं. So you don't need to worry कि New York नहीं जाना, is expensive. So if New York is expensive, the people getting paid according to whatever the rates are in the city. So तोकीर, कैसा लगा था जब पहली दफ़ा इधर आए थे न्यूयॉर्क में और कोई जॉब भी नहीं थी इन हैंड, और क्या एक्सपेंस था और कैसे रहते थे और क्या प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते थे यहाँ पे? Alhamdulillah, matlab, there are certain people, who really rewrite the story. So मैं हमेशा, I say कि Alhamdulillah, Allah has created so many opportunities for us and for me specifically. तो जब यहाँ पे आया तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई, मुझे कोई बेंच पे सोना पड़ा और somewhere. Alhamdulillah, it was very good. जब आप यहाँ पे आते हैं, there are certain seniors that get you, or seniors नहीं भी हैं, तो it's pretty easy to go on internet and search for a roommate. $300-400 के अंदर आपको रूममेट मिल जाता है. एक ऐसा रूममेट, whether you're a girl or a boy, it doesn't matter. तो आपको एक कमरा मिल जाता है जिसके साथ आप सेटल अप हो जाते हैं. if you're not married, तो आप easily जो है वो अपना steps toward the future you can keep it. So what was the process for NAPLEX exam for registration in USA as a registered pharmacist? Sure, basically ये 5 steps exam होते हैं, 5 steps total होते हैं in order to become a pharmacist. Number 1 होता है, now they changed basically I believe the steps. तो अभी सबसे पहले TOEFL होता है, you pass the TOEFL. TOEFL is basically a teaching of English as a foreign language, ठीक है, so a test of English as a foreign language.
तो आपकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है इन रीडिंग, इन लिसनिंग, इन स्पीकिंग एंड इन राइटिंग. These four sections you have to get some marks. Like there are certain standards, I believe 24 in writing, 26 in speaking, 26 in listening, and there's these are just basic standards that you have to pass the exam of English. And then you have to come to the second step, that is FPGEE. That's a foreign pharmacy graduate evaluation exam. That's a basic exam जो कोई भी internationally पढ़ा हुआ pharmacist जो है, they can pass it if they just study a little bit for it, so you can pass it. तो उसको pass करने के बाद जो है you get a certificate that's called FPGEC, Foreign Pharmacy Graduate Evaluation Certification. इस certification के बाद क्या होता है कि they consider you as equal to American pharmacy graduate, ठीक है, but do not confuse it with the license. License is where you start practicing it. तो जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, इस सर्टिफिकेट के बाद जो है you get a chance कि आप इंटर्नशिप कर सकें. You work under a registered supervision of a registered pharmacist, और आपको 2000 hours पूरे करने होते हैं. There are certain states, I'm talking about New York, states like New Jersey, states like Connecticut, they require only 1500 hours of work, but New York State do require 2080 hours of work as intern pharmacist under supervision of a registered pharmacist. So this is the step third, and then you get into another exam. There's a clinical exam called NAPLEX, North American Pharmacist Licensing Exam. So ये exam जो होता है, that is basically you are able to pass it. It's one of the most difficult exams in the field, लेकिन ये है कि you pass it अगर आपने थोड़ा सा मेहनत की है, जब आपने intern hours की हैं, you little bit studied with it, you try to know the system. So it's a clinical exam, scenario based. You get in an exam like a clinical case, and there are 15 to 20 questions that are coming out of every single clinical case जो उन्होंने present किया. And then the last one is called MPJE. That's a multi-state jurisprudence exam. ये law का exam होता है. You basically it's not a much heavier exam, but it's a lighter exam of law. कि pharmacy laws can, how many refills you can give, how many not, and who are the practitioners in that specific state, कितने board members होते हैं. Like this is just basically the state and federal law governing the practice of pharmacy in the United States. Okay, thank you so much for this description. जी, तो अभी तक हमने देखा है कि हमने टॉफल का एग्जाम देना है, FPGEE का एग्जाम देना है, FPGEC का एग्जाम देना है. इसके बाद हमने जब ये सारा कुछ क्लियर कर लेंगे सर्टिफिकेशंस, देन वी हैव टू कंप्लीट आवर 1500 आवर्स एज अ इंटर्नी अंडर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. देन वी हैव टू डू द MPGE एज अ लॉ एग्जाम, एंड देन वी शुड अप्लाई फॉर द लाइसेंस. एम आई राइट? That's right. ओके, सो क्या बताएंगे कि ये सारे जो एग्जाम्स हैं इनकी कॉस्ट कितनी है? मतलब अगर कोई बंदा यहाँ US में आ जाता है अपने एक्सपेंस के ऊपर, फर्ज करें 3 लाख लगा के पाकिस्तान से, या 4 लाख लगा के यहाँ आता है वो नया, तो इन एग्जाम्स के लिए कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, इसकी एक्सपेंस कितने हैं, और फिर हम आगे इसके लिए चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा और कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं. सबसे पहले जो टॉफल होता है, टॉफल का एग्जाम जो होता है, उसकी जो फी होती है दैट नॉर्मली इट वेरीज फ्रॉम $180, जो आज से 4 साल पहले थी व्हेन आई बिकेम अ फार्मासिस्ट, एंड it varies to up to $250 or $300. So आजकल I think so that is closer to $300. तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते. FPG जो है उसकी इनिशियल फ़ी होती है $1,200 and or I believe $1,400 in total. $1,400 होती है इसकी फ़ी, and then NAPLEX is $400-500. But actually what you need to worry is only the TOEFL fee. Because वही फी है जो आप पाकिस्तान से देते हैं. Other than that आप यहाँ पे आते हैं, you earn in dollars and you spend in dollars. So that doesn't matter 300 हो या 600 हो, because you're already earning in dollars, so you don't really, आपको इतनी परवाह नहीं होती उस चीज़ की. तो यहाँ आते ही हमें कौन सी जॉब आसानी से मिल जाती है जिसके अंदर हम फ़ौरन से एडजस्ट कर सकते हैं? मैंने सुना है जो फार्मेसी टेक्नीशियंस की जॉब हैं वो आपको इजीली मिल जाती है, और उसकी पेज भी इतनी इनफ होती हैं कि आप अपने टेस्ट की तैयारी भी कर सकें और अपनी ट्रेनिंग भी ले सकें. आप क्या कहते हैं? जी, बेसिकली होता ही है कि इन द स्टार्टिंग जब मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो गेटिंग एज जॉब ऑफ अ फार्मेसी टेक वाज डिफिकल्ट, क्योंकि इमिग्रेशन स्टेटस नहीं होता, कोई जॉब देने को राजी नहीं होता. लेकिन द थिंग इज कि नाउ देयर आर लॉट ऑफ काफ़ी सारे
मैं हूँ, and there are other pharmacists from Pakistan. They like people, new people coming as a pharmacist, and they need the opportunity. तो jobs अब मिल जाती हैं. Now you get a job as a pharmacy technician, or your regular salary होती है that varies from $15 to up to $20 per hour. तो इस वजह से मेरे ख्याल से getting a job is not a problem. हमारे कंट्रीज में बहुत सारी मिथ्स हैं तौकीर भाई के लड़का नहीं आ सकता, लड़की नहीं आ सकती, मेरे पास पैसे इतने नहीं है, मैं कैसे चला जाऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे गाइड करने वाले लोग नहीं हैं, मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, मेरी इमिग्रेशन नहीं होगी, क्या पता वहां जाके मैं कैसे सरवाइव करूंगा, ये करूंगी। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जो मिथ्स हैं काफ़ी सारी या फॉल्स हमारे पास हाइपोथेसिस हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, I'll say कि जितने भी मिथ्स हैं, like sometimes कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फाइनेंसेस इतने नहीं है कि जी मैं अफोर्ड कर सकूं। अगर आप अपनी कैटेगरी या लाइसेंस पाकिस्तान में कहीं पे देते हैं, इन नो वे आई एम एडवाइजिंग समवन टू गिव देयर लाइसेंस फॉर दैट, बिकॉज मुझे पाकिस्तान के जो स्टेट लॉस हैं regarding the practice of pharmacy, I'm like 4 years, since 4 or 5 years I'm in here United States, तो मुझे नहीं पता क्या है, so I'm not advising in any way कि आप अपनी कैटेगरी किसी को दें, लेकिन I did it, मैंने ऐसा किया था। लेकिन ये है कि you get 300,000-400,000, so you can easily do the process for United States. लेकिन ये है कि आप अदर देन दैट आप जॉब कर सकते हैं 4-5-6 months एंड यू कैन गैदर दैट काइंड ऑफ मनी, लाइक 3-4 लाख रुपया, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो आप वो सेम मनी यू कैन स्पेंड इट एज ए फी, और वीज़ा फ़ी जो होती है वो सिर्फ 16,000 रुपये होती है, 16-17,000 रुपीज़ PKR, पाकिस्तानी रुपीज़। तो इस वजह से आल से कि ना एजेंट्स को इस्तेमाल करें, खुद अपना प्रोसेस करें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, यू गाइज आर एजुकेटेड, तो यू कैन ईजीली जस्ट रीड ऑन द एम्बेसी वेबसाइट कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड यू कैन ईजिली गो थ्रू दैट। लोग कहते हैं जी मेरे पास तो टॉफल होना चाहिए, आइल्स होना चाहिए। यू डोंट नीड अ टॉफल, यू डोंट नीड आइल्स। आप स्ट्रेट जो है वो यू कैन गो ऑन द कॉन्सुलेट वेबसाइट इस्लामाबाद, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो द पीपल जो यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी में लोग बैठे हैं, अमेरिकन बैठे हैं, दे आर वेरी लिबरल अबाउट ग्रांटिंग द वीज़ास। मतलब कि पाकिस्तान में हमारे और बड़े मिथ्स हैं कि इस्लाम से नफरत करते हैं, तो पता नहीं मुसलमानों से नफरत करते हैं। यहाँ कोई किसी से भाई नफरत नहीं करता, ठीक है। एम ब्राउन, मतलब कि ब्राउन कलर है मेरा, एंड आई एम अ फार्मासिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अर्निंग वे मोर देन अ रेगुलर अमेरिकन अर्न्स। लेकिन कोई नफरत नहीं करता यहाँ किसी से, एवरीबडी लव्स एवरीबडी एल्स, कोई हेट्रेड नहीं है, कोई नफरत नहीं है। ट्रस्ट मी के ये जो छोटे छोटे पैटी इश्यूज आपको रोजाना मीडिया के ऊपर नजर आते हैं, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। जी तो कीर भाई, तो मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मेल्स तो इजीली मूव कर सकते हैं, तो फीमेल्स के लिए क्या हो सकता है कि वो क्या इजीली यहाँ पे रह सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं? जी बेसिकली यहाँ पे हमेशा मतलब बिकॉज मैंने खुद जो फॉर्म दी है वो पाकिस्तान से की है, एंड मैं पाकिस्तानी, मैं आई हैव नेवर बीन फॉर एवर इन अमेरिका, मैं हमेशा से तो यहाँ नहीं हूँ। तो पाकिस्तान में एक बड़ा मिथ है कि ये तो लड़की है, ये मूव नहीं कर सकती, अमेरिका नहीं जा सकती या किसी और कंट्री नहीं जा सकती। तो देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपकी बेटी, आपकी बहन या एनीवन इंग्लिश बोल सकती है, जो लैंग्वेज को समझ सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है अमेरिका। आल सही लड़की के लिए यहाँ पे रात को 2 बजे या 3 बजे भी लड़की जो है वो एक जॉब करके आ रही है ना, नाइट शिफ्ट, एंड शी इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो कोई बंदा उसको जो है वो हैरेस नहीं करता। नोबडी लाइक लुक एट हर कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज वेरी सेफर। तो इस वजह से जो आपकी फैमिली में लड़कियां हैं या लड़के हैं, लड़कों के लिए तो खैर है ही अपॉर्चुनिटीज, लड़कियों को स्पेसिफिकली फैसिलिटेट करें, ठीक है। डू नॉट मेक अ मिथ, यानी उनका लड़की होना या देयर सेक्सुअल जेंडर, ठीक है, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम और हिंड्रेंस इन देयर वे टू द सक्सेस, ठीक है। तो बाकी दे ऑल हैव लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लड़के या लड़की के लिए इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। अमेरिका में ट्रक चलाने से लेकर एयरप्लेन चलाने तक जो है वो हर जॉब जो है वो गर्ल्स गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबली अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी ओवर अ मैन। अच्छा,
And Tokir, what about the bank statement for visa जी or something like this? जी, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये बड़ी चीज़ होती है कि हमने वीज़ा अप्लाई करने हैं, चलें 3-4 लाख तो इकट्ठे कर लिए। अब द नेक्स्ट बिग इशू इसके बैंक स्टेटमेंट अब कहाँ से करें? देखेंगे गिविंग अ फैल्सिफाइड डॉक्यूमेंटेशन टू द कॉन्सुलेट या एक फॉरेन एम्बेसी को दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ फ्रॉड, तो आई एम नॉट प्रीचिंग इट, ना ही मैं ये कहूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इजीली कोई फार्मेसी है जिसके अंदर आप जॉब करते हैं, कोई कंपनी है जिसके अंदर आप जॉब करते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि दे कैन राइट अ लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर यू, कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, यूएस जाने के लिए, एंड दे विल बेयर योर एक्सपेंसेस, तो दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट। So अगर मैं अभी नया नया जैसे यूएस में आया हूँ और एज अ फार्मासिस्ट मैं यहाँ आके एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द यूएस सिलेबस, जी तो मुझे एटलीस्ट कितने पैसे अपने साथ लेके आने चाहिए फर्स्ट मंथ के लिए, जी। और यहाँ पे पर मंथ लिविंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग ऑल ग्रोसरीज, क्लोथिंग, लॉन्ड्री एंड ओवर ऑल द थिंग्स, हाउ मच आई नीड? जी, जब पाकिस्तान से आप आते हैं तो मेरे ख्याल से $1,000 इज फाइन। $1,000 आपकी जेब में हो तो यू आर फाइन। इतनी देर में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की ज़ात सबब बना देती है आपका एक वेट्स रिसोर्सेज के आपके पैसे आने के लिए तो इस वजह से इट्स नॉट अ बिग डील, इतनी परेशानी की बात नहीं होती। यू स्टार्ट अर्निंग एंड देन यू स्टार्ट पेइंग ऑफ व्हाटएवर द एक्सपेंसेस आर। तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप इसको अफोर्ड ना कर सकें, ठीक है, बिकॉज यू लिव डेफिनेटली ऑन शेयरिंग बेसिस। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जब आने लगे अमेरिका तो जस्ट गेट योर होल फैमिली विद यू एंड कमिंग हियर, बिकॉज जब आप सारी फैमिली लेकर आते हैं यू हैव टू लिव इन अपार्टमेंट। एवरेज अपार्टमेंट कॉस्ट लाइक $1,600 to $1,800 per month. जब आप अकेले हैं तो you can always share the apartment or a room with someone else just on $250, $300 or $400 a month. So I'll say in your struggling phase, just come along and just pass your exams, and then after that you have a good source of income. तो उसके बाद you can call anyone from your family or whatever, जो हर बंदे की preferences हैं। Okay. So, before going to the part 3 of your interview, I would like to take a break here. And till then, audience, please, if you didn't subscribe my channel till now, please subscribe my channel. In part 3, we will discuss about the syllabus for NAPLEX, the exam parts, how to do, how to prepare, and the future prospects as a pharmacist in USA. So, stay connected. जी तोकीर, so what about the syllabus for NAPLEX exam? क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, तैयारी कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर होगा? Can you give us some elaboration? जी, तो हमारी बेसिकली ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि पीपल थिंक के जो बाहर का फार्मासिस्ट है शायद उसके पास जो है ना ही हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज या प्लेंटी ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं होता। फार्मासिस्ट का काम जो है वो is to make sure that when we are dispensing the medication that is safe for the person who is getting it. Pharmacist कोई professor नहीं होता, so you don't have to be a professor, you have to be a pharmacist, ठीक है। तो एक book होती है that's called RX Prep. RX Prep is really a complete version of how to study for the NAPLEX. Different portions होते हैं, pharmaceutical calculations, pharmaceutical practice like pharmacy practice portion, उसके अलावा pharmacology का portion होता है। So these are like basically this is an exam of pharmaceutical sciences, ठीक है। So you don't have to be a professor, go through RX Prep book है, उसे पढ़ें आप। पाकिस्तान में जो है वो there are other couple of books available, CPR book है वो available है। So there is also a complete version के आपको जो US में study करना है, ठीक है, pharmacy के अंदर। So there is nothing something coming over your head. ऐसा नहीं है। You don't have to be a professor. You just have to become a pharmacist, registered pharmacist who could make sure whether you're delivering a medication, services that are effective and safe. Safety is the main thing. Safe होनी चाहिए. That is it. So what about for passing FPGEE? Like how much time we require to pass the step 1 of this exam? Well, हर बंदे की intensity different होती है. How everybody takes something. Well, just talking about myself, मैंने 20 दिन जो था, I just studied 20 days for FPGE. I was pretty intense कि मैंने सुबह 6 बजे बैठना और रात को 8-9 बजे तक बैठ के I just used to make notes.
तो दैट कैन हेल्प यू। आई मीन हर बंदे का जो एक स्टडी स्टेमिना होता है डिफरेंट होता है, उसके पास टाइम कितना अवेलेबल है वो डिफरेंट होता है। सो एज फार एज आई नो कि फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, दे हैव प्लेंटी ऑफ स्टडी स्टेमिना। तो आप बिल्कुल आराम से अगर एक महीना आप सुबह 6 o'clock से बैठ के शाम 6 o'clock तक पढ़ सकते हैं, तो आई थिंक सो यू आर गुड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। And what about the step 2 FPGEC? How much time you need for completing For that task? FPGEC, because FPGEC is a certification, it's not an exam. Okay. So ये certification आपको तब मिलेगी when you have passed your first exam, TOEFL. TOEFL हर किसी की language skills are different, where somebody is coming from, उसका फैमिली जो है उसमें फैमिली में लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पे घर में इंग्लिश कितनी इस्तेमाल होती है। शायद पाकिस्तान में तो लाइक आई माई सेल्फ आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली के, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश तो कोई नहीं बोलता। लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जिनकी फैमिली में देयर इज अ ट्रेंड, दे यूज अ लॉट ऑफ वोकैब, दे आर गुड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो यू कैन पास इट लाइक 1 to 3 विदाउट प्रिपरेशन। लेकिन इफ यू आर समवन लाइक मी, तो दैट माइट टेक कपल ऑफ मंथ्स, के 2-3 महीने लग सकते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू द पैटर्न एंड you can practice। जब आप US आते हैं तो automatically you can practice with people, native speakers होते हैं। during job time you speak to your colleagues, तो उसमें आपकी vocab अच्छी build हो जाती है, and vocab is not that important। लेकिन important thing is how fluent you are in English and how you speak a simple English, don't complicate it। So pattern से मुझे याद आया, what is the pattern for NAPLEX exam? Either it is clinical related, subjective related, or like in our countries objective and subjective plus? No, not at all। ये जो है ये totally clinical है। Clinical means they give you a clinical case, for example like some person whose name is John. John is 83 years old. John has a history of hypertension and cardiac arrhythmia, and John has been on 12/17, yeah, 6/17, June 17, patient has been on certain medication, he was hospital admitted, his potassium level was that, sodium level was that, and what should be the best drug of choice on this date for this patient। So यानी कि ये सिंपल होते हैं, and actually they are, I'll say, objective। clinical case जरूर होता है, लेकिन ये है कि they are much focused on the smaller points। like इसके अंदर बात कितनी होगी, सिर्फ ये होगी प्रोबेबली कि डाइजॉक्सिन का ऑप्शन उसके अंदर होगा कि हार्ट फेलियर का अगर पेशेंट है तो डाइजॉक्सिन है, and you see that or digoxin increase the potassium level in the patient, so this patient will not be a good candidate for digoxin, that sort of thing। या अगर पेशेंट का पोटेशियम कम है तो there might be one diuretic coming in and they will have an interaction like that। so the cases are not as complicated as they look, basically they are kind of objective। So इसका मतलब है कि हमें फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? That's right। मतलब जो एक फार्मेसी प्रैक्टिस है स्पेसिफिकली लाइक फोर्थ में क्लिनिकल जो है, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। दैट टेल्स यू द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस एंड ऑल दैट। मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस है ऐसी जो एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल होती है, जो आपको मेडिसिनल के स्ट्रक्चर्स हैं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि आप मेडिसिनल ना पढ़ें, नहीं, मेडिसिनल इज़ अ गुड सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा बंदा जो एक रिटेल में आना चाहता है, बिकॉज 99% ऑफ द फार्मासिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका, they're employed on the community pharmacies, and this is the most lucrative and well rewarding field। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे अच्छी लगी है, अप्रिशिएटिंग भी है, ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ है इसके पीछे क्या रीज़न है? ये यूनिफॉर्म बेसिकली इस स्क्रब के यहाँ पे यूएस के अंदर जो एक मेडिकल फोर्स टीम है, तो ये उनका एक ड्रेस होता है। इट्स ऑलवेज गुड टू वेयर दैट इंस्टेड के somebody is wearing some yellow kind shirt, the other one is red, and the third one is coming up with a white shirt। so instead के लोग जो होते हैं, हम देखें ना, मेरा ये ड्रेस है, I know I don't have to buy plenty of clothing। मैं सुबह उठूंगा, ये पहनूंगा, इधर आ जाऊंगा। so that is something it's easy and it looks more professional। Okay, so what are the future perspective? We have completed the task for NAPLEX exam. We are registered pharmacists now. How can we search a good job in US or in New York? Sure। हमेशा जो the people who are viewing it, जो पाकिस्तान में हमारे जूनियर्स हैं या हमारे सीनियर्स हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, I'll suggest कि हमेशा
एक चीज पे never be sturdy कि I just have to do everything on my own. सारा कुछ आपको खुद नहीं करना होता. People like Farhan Bhai, people like many other seniors, many other friends, they're very helping होते हैं ये. आपको कुछ भी गाइडलाइन चाहिए, जॉब चाहिए, always call them, ask them, ठीक है. The more you ask, the more you build the connections with people, easier it gets for you to find a job लेना, या job के अंदर, even while working as a pharmacist, there are certain clinical cases you encounter कि जहाँ पे आपको second opinion चाहिए होता है. So it's not always just go alone, अकेले जाना हर जगह आपको. No, just have someone like आपके seniors हैं, मेरे से आप contact कर सकते हैं. You might be my senior, you might be my junior. So it is always like a brotherly relationship between seniors and juniors. अगर बड़े हैं तो वो आपके बड़े भाई की तरह हैं, छोटे हैं तो they are like your younger brothers. So just you should respect that relationship and you should build that relationship with your seniors and with your juniors. Okay, they could know and they could ask you for help जब कभी किसी को help चाहिए. So how you look pharmacy profession as a pharmacist registered in Pakistan and registered in USA? Being registered in Pakistan and being registered in United States is entirely different. Basically, I will say sometimes मैं इस बात को ऐसे भी देखता हूँ कि it's not different, it's the same. लेकिन फर्क सिर्फ एक practice rules का है. पाकिस्तान यहाँ पे आपको दोबारा से you have to do another form day, not literally to go to university, लेकिन इस तरह से you have to study all over again. ठीक है. और ऐसी चीजें जो एक यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि you learn, आप सीखते हैं, and that is to ensure कि जो patient है he is safe, and because he cannot be victim of your professional incompetency. तो इस वजह से being a competent is the key. तो वो competent आपको इनका सिस्टम एग्जाम फेस करने के प्रोसेस में बना देता है. ठीक है. Because you have to re-go through everything whatever you have studied in pharmacy school. उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर देखें, बहुत सारे आप में से सीनियर्स ऐसे इस बात को सुन रहे होंगे कि जो अपनी प्रैक्टिसेस जिन्होंने बनाई हैं, who have a pharmacy systems, तो for God's sake, मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जूनियर से भी, जब कभी आप किसी फार्मासिस्ट को हायर कर रहे हैं, हायर हिम ऑन गुड सैलरी. अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, यू आर अर्निंग लाइक 3 million, 2 million, $1 million a month, अगर आप उसको 25,000 की बजाय 1 लाख पे हायर करेंगे, ठीक है, तो आपका प्रोफेशन ऊपर जाएगा. पीपल विल रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन. यूएस के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान में एक बंदा फार्मेसी के ऊपर खड़ा है तो ही इज कंसीडर्ड, इफ ही इज अ फार्मासिस्ट, पीपल डोंट रिस्पेक्ट हिम because they think, ऐदा की है, ये कम करता है मेडिकल स्टोर देन ही वर्क्स फॉर 25,000. इसमें आपका कसूर है, आपकी इंसल्ट है, प्रोफेशनल इंसल्ट है आपकी. ठीक है. यूएस के अंदर सेम पर्सन, आई एम वेयरिंग स्क्रब्स, आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन अ रिटेल फार्मेसी. एक बंदा जो रिटेल फार्मासिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, ही अर्न्स $15,000. When you go out, you tell someone कि जी मैं तो फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, so they appreciate it and they like, wow, you're a pharmacist. तो ये वाव और ये की करता है इसमें. दिस डिफरेंस इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द इनकम डिफरेंसेस. ठीक है. तो आप जो बिजनेस अल्लाह ताला ने आपको कैपेसिटी दी है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, यू आर अर्निंग मनी, तो आई एम नो वे आई एम इन एट अ पोजीशन टू एडवाइज एनीवन, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपना बिजनेस बनाएं तो प्लीज आप जो दूसरे आपके दोस्त हैं जिन्हें आप हायर कर रहे हैं, तो उनका ख्याल रखें, respect them. Market rate को मत देखें. Market rate is decided by how the people are paying. अगर आप सारे आज मिलकर जो है अपने businesses के अंदर you will start paying 100,000 rupees to a pharmacist, so this will become the market rate. So don't say that कि यार ये market rate 25,000 गया तो it's not a sagacious business decision to hire someone on 100,000 when you can hire somebody on 25,000. This is the matter of your professional respect. So, Tokir, if we pass the pharmacy exam here and we became a registered pharmacy, can we only work in retail pharmacy or we can work according to our interest, like in industry or some clinic or somewhere else? जी, यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है that's called collaborative practice agreement, CPA. जो collaborative practice agreement होता है, you have to sign it with some physician, so you get some certain restricted prescriptive authority as a pharmacist.
अदर देन दैट अगर आपको जाके हॉस्पिटल में काम करना है या क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में काम करना है तो यू कैन वर्क देयर टू, वहाँ पे काम कर सकते हैं. एंड अदर देन दैट देयर इज अ ग्रोइंग फील्ड का मतलब है यहाँ पे फेलोशिप्स होती हैं, इंडस्ट्री फेलोशिप्स होती हैं. यहाँ पे यूएस में इफ यू आर अ फॉर्म डी दे ट्रीट यू एज a kind of PhD level, professional doctorate they consider it. उसके बाद आपको you get certain postdoctoral fellowships, industries में होती हैं postdoctoral fellowship, and a couple of friends of mine जिन्होंने they were selected for that, उसमें जिस तरह फार्माकोविजिलेंस के अंदर काम करते हैं, ये साइड इफेक्ट्स और दिस ऑल दैट, ये क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो लोग काम करते हैं. दे आर द एक्सपर्ट्स हु डिड द फेलोशिप्स देयर. अदर देन दैट आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं PGY1, PGY2, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसीज. तो यहाँ रेजिडेंसीज आपके पास होती हैं. एंड देयर आर सर्टेन पीपल जिनकी एक ख्वाहिश होती है कुछ भी करना. तो यूनाइटेड स्टेट्स में देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं. यू विल ऑलवेज हैव समथिंग, यानी इस तरह नहीं है फुल स्टॉप. और एक मैं हमेशा से ये यहाँ पे दिस थिंग हैज़ बीन अमेजिंग. अमेरिका की जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप फार्मेसी स्कूल में जाएंगे तो यू विल फाइंड पीपल 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल की उम्र में फॉर्म डी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट बन रहे हैं. एंड आई नो वन ऑफ द फार्मासिस्ट कि वो फार्मासिस्ट था एंड ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ ट्रॉमा सर्जन. एंड आई ऑलवेज से दैट ही डिड start his medical school in America at the age of 42 and he became a trauma surgeon at the age of 52. ठीक है, तो it is always about what you wish and what you want to do. It's never about के उम्र गुजरी जा रही है. अक्सर पाकिस्तान में होता है FSC के स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म डी में आते हैं फर्स्ट ईयर में, they have a potential to go to med school or some other school where they're interested to. लेकिन जी एक साल ज़ाया हो जाएगा. ओ भाई एक साल वो बचा के तुम क्या कर लोगे? What you will do with that 1 year. Career is a matter of your life. पूरी जिंदगी, if you become a pharmacist, you have to die as a pharmacist unless you really change it. तो हमेशा सोच समझ के फैसला करें. If you think pharmacy is for you, this is what you're looking for from your life, so do it. If you think you are made for some medicine, like the MD or medical doctor, so you can always switch your field even after doing a Pharm D. और ये 2 साल का नहीं होता है MD. पाकिस्तान में बड़ा फेमस है जी, 2 साल का होता है MD. MD इज नेवर 2 years. MD अमेरिका में होता है 4 साल का. ठीक है, 4 साल के MD होता है, 3 साल की हॉस्पिटल रेजिडेंसी है जिसे इंटर्नशिप कहते हैं होती है. एंड देन यू बिकेम अ मेडिकल डॉक्टर या सर्जन बन जाते हैं आप. तो सबके जहन में एक ये सवाल होगा, यहाँ पे रह के एज अ फार्मासिस्ट आप कितना कमाते हैं, कैसे खाते हैं, गुजारा कैसे होता है. सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी यही होगा इस पूरे इंटरव्यू का कि जी मैंने फार्मेसी कर ली, मैंने 4 साल मेहनत कर ली, मैंने 2-3 एग्जाम पास कर लिए, मैंने ट्रेनिंग्स कर ली, मैंने इंटर्नशिप्स कर ली, मैंने लॉ के एग्जाम पास कर लिए, मैंने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गया हूँ, मैं USA में हूँ. हुन मैनू मिलेगा कि मैं कमावांगा कि ना, खावांगा कि ना. तो क्या होता है यहाँ पे, कितनी सैलरी है? दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग रियली ग्रेट, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ. लेकिन यहाँ पे जो एवरेज फार्मासिस्ट की सैलरी है दैट इज बिटवीन $55, $55 से लेकर $100-120 तक भी है पर आवर सैलरी जो है. सो मंथली आप ऑडियंस हमारी जो है ना वो सुनना चाहती है लमसम एवरेज कितनी है, मतलब मंथली कितना हम लेते हैं. और सब हमारी आवाम जो है ना, आपको पता है वो कैलकुलेशनें करने में बहुत ज्यादा तेज होती है कि ये इतना डॉलर्स लेता है तो इतने पाकिस्तानी रुपीस कमा रहा होगा. बट अब एक एवरेज बता दें कि इस एवरेज से लेके इस एवरेज तक डिफरेंट स्टेट्स में इतनी सैलरी है फार्मासिस्ट की. जी, यहाँ पे अमेरिका में रोजाना का आप अगर पाकिस्तान में मैं कहूँ तो 1 लाख रुपया डेली का कमाता है फार्मासिस्ट जो होता है. सो अमेरिका में यू कैन अर्न 100,000 रुपीज अ डे, यानी 1 लाख रुपया एज ए फार्मासिस्ट आप रोजाना कमाते हैं. तो दिस इज इन शॉर्ट. सो तोकीर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाइड किया आपने सबको. मैं कोशिश करता हूँ हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे बैचमेट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सब इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने जूनियर्स के लिए, फार्मेसी के फ्यूचर के लिए और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए कि हम डिफरेंट कंट्रीज में यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं. यू आर एज ए एग्जाम्पल फॉर अस. तो कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों के लिए, जूनियर्स के लिए, नए आने वाले फार्मासिस्ट के लिए जो अभी FSC कर रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटीज में नहीं आए, उनके लिए क्या पैगाम है एज अ प्रोफेशन
प्रोफेशन इसको फार्मेसी को लें ना लें, और कोई अच्छा सा मैसेज उनके लिए है तो प्लीज़ रिकॉर्ड करवाएं। और मेरा सिर्फ एक मैसेज है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी स्कोप डिग्री का नहीं होता, एंड नेवर सर्च अ स्कोप इन डिग्री। डिग्री के अंदर स्कोप को मत ढूंढें, स्कोप आपका खुद का है। स्कोप इज योर, यानी आप एज ए फरहान साहब कैसे हैं, आप एज ए तोकीर कैसे हैं, हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, दैट इज योर स्कोप। इट्स नेवर अबाउट वट एवर यू डिड, ठीक है। और सेकेंडली, अगर पर्सनली इफ यू हैव टू लूज समथिंग, लूज इट, इफ यू हैव टू गेन समथिंग, गेन इट। लेकिन मैं हमेशा से यहाँ भी, माई कोलीग्स, आई ऑलवेज से दैट कि कुछ भी ऐसा मत करें जिससे आपका प्रोफेशन गिर जाए। जब आप खुद को गिराते हैं, व्हेन यू लूज प्रोफेशनली, तो उससे सिर्फ आप ही डैमेज होते हैं, ठीक है। आपका प्रोफेशन नीचे चला जाता है, प्रोफेशन डैमेज होता है। जब बीइंग अ फार्मासिस्ट आप जाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केटिंग इज बैड, ठीक है, a lot of people has to do that, लेकिन द थिंग लुक एट दिस वे, जब आप जाकर किसी के ऑफिस के सामने बैठते हैं, आप बहुत कुछ जिंदगी में कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जाकर खुद को नीचे गिराते हैं, बैठते हैं, यू लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उससे पूरा प्रोफेशन जो है बदनाम होता है। तो प्लीज डू समथिंग। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपने फॉर्म डी कर लिया तो CSS इज नथिंग फॉर यू। I was CSS aspirant. For 10 months I did the preparation. You can do anything you want in your life. लेकिन don't let your profession go down or slide down. ठीक है? So this is what I want to say. That is all. Thank you for your time. So thank you Farhan bhai for recording all that. So I hope this fulfills the purpose. Purpose ये था कि not to show anything or not to take much of your time, but it was the only way कि आप लोगों को motivate कर सकें, आप लोगों को guide कर सकें। And you might know a lot of things probably better than me, but if you need any help in terms of licensing in the United States, so you can definitely call or contact us for free. Please tell your pharmacy name here, like where your pharmacy is situated, what is the name of your pharmacy? So my pharmacy name is Carewell Pharmacy, and that is located in Brooklyn, New York, and it is located on Church Avenue. So definitely anything needed, any help needed, we will inshallah always be ready to help you anywhere you need. थैंक यू सो मच तोकीर। मैं आपके ऑफिस का छोटा सा एक विजिट कराता हूँ इनको, ताकि इनको आपके ऑफिस का एक छोटा सा विजिट हो जाए, और विजिट के बाद मैं कुछ कोटेशंस दिखाता हूँ जो आपने अपने ऑफिस में लगाई हुई हैं, ताकि वो भी लोग पढ़ लें थोड़ा सा कि 10 हैबिट्स कौन सी अच्छी और क्या क्या कोटेशंस हैं। जी ऑडियंस, ये हमारी आज की वीडियो थी। ये तोकीर साहब का ऑफिस है जहाँ ये बैठे हुए अपनी फार्मेसी के अंदर। ये साइड पे फार्मेसी एरिया है, और हम अपनी नई वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड करूँ कि ये यहाँ पे काम कैसे करते हैं, देयर वर्किंग आवर्स क्या हैं, वर्किंग ड्यूरेशन कितनी है, टफ कितना है, फार्मेसी टेक्नीशियन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर जूनियर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय।